everyone. Welcome back to the very first session of class 3rd computer that is about working of a computer. Okay, so students, in this session today, we are going to learn that how does this wonderful and amazing machine known as computer works. Okay, let's start the chapter and learn about it. See, so in this chapter, we are going to cover the IPO cycle, okay? And also, we are going to learn about working of a computer. So first of all, we have the topic of IPO cycle. What does it stands for? It means input, process, output. IPO cycle means input, process, output. Okay, so IPO cycle is a system that consists of input, output and the steps required to change the input into output. What they say कि IPO cycle एक ऐसा सिस्टम है जहाँ इनपुट होता है, आउटपुट होता है एंड वो सारे स्टेप्स जो एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द साइकिल नोन एज IPO cycle only. Okay, now let us first look at some examples to understand this. First of all, they have given you the IPO cycle of making juice. मान लो एग्जाम्पल गिवन है कि आप जूस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या IPO साइकिल होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनपुट, आई फॉर इनपुट मीन्स हमें क्या चाहिए सबसे पहले फ्रूट्स. ओके, फ्रूट्स क्या है, इनपुट है जो किस में प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे यानी कि उसका जूस बनाया जाएगा एक जूसर मशीन में. ओके, फ्रूट्स को लेकर आप जूसर मशीन में डालेंगे, जूसर मशीन को वर्क किया जाएगा, रन किया जाएगा एंड उसमें जो उस फ्रूट्स के थ्रू जूस बाहर बनेगा, ठीक है, उसे बोला जाएगा प्रोसेस. एंड देन द आउटपुट विच यू विल गेट एट द एंड विल बी द जूस विच यू हैव दिस. ओके, ये जो आउटपुट आपको एट लास्ट मिलेगा वो क्या है, वो वही जूस है जो उस फ्रूट्स को प्रोसेस करने के बाद मिला है इन द जूसर मशीन. So this is the whole IPO cycle of making juice. Second example, they have given you the IPO cycle of washing the dirty clothes. Dirty clothes को wash करने की IPO cycle क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे input चाहिए जो कि क्या होंगे, आपके dirty clothes होंगे, they are input. फिर इन्हें process किया जाएगा, means what? इन्हें मशीन में डाला जाएगा, इन्हें wash किया जाएगा. Okay, that means जो washing clothes, washing process है, that is the P known as process. And finally, जो आपको clean clothes मिलेंगे after washing, that will be the output which you have got. Okay, so this is how this IPO cycle of washing the dirty clothes will look like. Okay, so I hope now you have understand the meaning of what IPO cycle means. What? सबसे पहले input चाहिए होता है, उसे process किया जाता है and then the final result which you get is known as output. Next is working of a computer. See students, in the same way a computer also work in these 3 basic steps. अब इसी तरीके से कंप्यूटर भी इन्हीं 3 basic steps पे work करता है, that is input, process, output. यानी कि कंप्यूटर भी एक IPO cycle को follow करता है. Okay, I for input, P for process, O for output, and this is what is known as IPO cycle: input, process, output. See, first of all, they have given you about input. We need to enter letters, numbers or any other information into the computer to make it work, and these are called data. So students, computer वर्क करे, उसे वर्क करवाने के लिए आपको उसमें कुछ लेटर्स, नंबर्स या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एंटर करना पड़ता है एंड उस इंफॉर्मेशन को वी कॉल डेटा. सेकेंडली, फिर जो जितना भी आपने डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर किया है, okay, that all together is known as input. Okay, so input to the computer is usually given by clicking the mouse or typing on the keyboard. And किसी भी कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए आपको या तो कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना है या फिर आप माउस पे क्लिक करके भी कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं.
द इनपुट डिवाइसेस, अब कंप्यूटर के पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए रिक्वायर्ड है, एंड ऑल दोज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, etc. All these are input devices. Okay. Second, we have process. What is process? The process of changing the entered data into meaningful information is called processing. वो process या वो steps of instructions जिनके थ्रू एक entered data, कंप्यूटर में जो डेटा आपने एंटर किया है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, that whole process is known as processing. Okay. And इस डेटा को, एंटर्ड डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम, यानी कि जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है वो सीपीयू का होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, दे हैव गिवन यू दैट सीपीयू वर्क्स ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस टू गिव द रिजल्ट. जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दिए हैं, ओके, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सीपीयू वर्क करता है उस डेटा पे, एंड देन आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है. एंड सीपीयू इज आल्सो नोन एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इसीलिए सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है. देन वी हैव आउटपुट. आउटपुट इज व्हाट? इनपुट को एंटर किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया, एंड एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है आफ्टर प्रोसेसिंग, दैट इज नोन एज आउटपुट. द फाइनल रिजल्ट और द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. When the CPU finishes processing the data, जैसे ही CPU उस डेटा की प्रोसेसिंग को फिनिश करेगा, आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. ओके. An output from the computer may be images on the monitor or printouts from the printer. Okay, and वो output जो आपको कंप्यूटर के थ्रू मिलता है वो या तो मॉनिटर पर इमेजेस की फॉर्म में दिखेगा, या आप उस आउटपुट को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. ओके, सो बेसिकली आउटपुट रिसीव करने के लिए भी वी हैव सम आउटपुट डिवाइसेस, एंड इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वी कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द computer. Okay, they have given you some some output devices, like we have monitor, printer, speakers. All these are what? Output devices only. Now let us understand the working of computer with the help of an example. अब यहाँ पे example given है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की वर्किंग को समझेंगे. Suppose you want the computer to add two numbers. They have given an example कि सपोज हम चाहते हैं कि कंप्यूटर दो नंबर्स को ऐड करे, एंड वो जो दो नंबर है वो क्या है? 2 and 9. सो अब यहाँ पे जो वो 3 स्टेप्स है वो कैसे चलेंगे? सबसे पहले आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, दैट इज 2, 9 and प्लस. मीन्स व्हाट? कि आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कि उसे 2 and 9 इन 2 नंबर्स को ऐड करना है. देन कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, यानी कि 2 + 9 करेगा, एंड एट लास्ट वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी 11, बिकॉज 2 + 9 = 11. सो हेयर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 2 and 9 है ये डेटा है, एंड जो ये प्लस है ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है. 2 + 9, 2 and 9 जो है वो डेटा है, एंड इस डेटा पे फंक्शन जो है, इसका जो इंस्ट्रक्शन आपने प्रोवाइड किया है वो क्या है? प्लस, कि आप 2 and 9 को सम करना चाहते हैं. अब कंप्यूटर का जो सीपीयू वाला पार्ट है, इट विल प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर इस डेटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, यानी कि वो 2 and 9 को ऐड करेगा, एंड नाउ जो 11 आपको मिला है इज द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट ऑफ 2 + 9. एंड फाइनली जो आपको 11 मिलता है वो क्या है? फाइनल रिजल्ट है, ये 2 + 9 का आउटपुट है. Okay, so this is how the computer works on the basis of IPO cycle. The chapter is completed. That's all for today. Let's meet in the next session with some new concept of computer. Till then, keep doing well, and thanks to everyone.